through our ministry today. और प्रभु के नाम की महिमा हो, आज का जो सेवकाई के जरिए परमेश्वर की नाम का ही महिमा हो। I enjoyed the singing this morning. और आज की सुबह में जो गाना आप लोगों ने गाया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। Every one of you sang beautifully well. और जितने लोग आप लोगों ने गाया, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गाया। Particularly today, I heard Bhavani sing and Preeti Jacob sing, and they sang so sweetly. और जैसे कि भाई भवानी ने गाना गाया और सिस्टर प्रीति जेकब ने, दोनों ने गाना गाया। मैं उन लोगों की गाना को सुना। I think everyone who sang today, God has blessed you with a very special talent. So as you are doing today, may God continue to use you for His glory, and that you will develop the skill and you will continue to sing well, so that God be honored and glorified. और आप लोगों में से जितने लोगों ने जो गाना गाया, वो सब के सब बहुत अच्छे से गाना गाया और परमेश्वर ने ये जो वरदान दिया है, ये प्रभु का महिमा के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे। We are God's people, and our God is a unique God. Our God is a living God, a sovereign God. So He can equip us with every skill that we need better than the people of the world. That is something that I'm prompted to tell all of you. मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हम सब के सब अनोखे हैं, अनमोल हैं, और जो परमेश्वर आपको और मुझे एक अनोखे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। Now, I can never be without thinking of Joseph and Daniel. और मैं जो है यूसुफ और दानियल के विषय में बिना सोचे मैं आगे नहीं जा सकता। I can never be without thinking of Ruth and Esther. और मैं जो है आगे कभी सोच नहीं सकता रूथ और एस्तर के विषय में बिना सोचे। One thing very unique with all these four people, they are very ordinary people. और जो है इन लोगों के विषय में, यदि चार लोगों के विषय में देखें, तो जो है एक अनोखी बात, एक अनमोल बात मुझे दिखाई देती है। वे लोग साधारण किस्म के लोग हैं। They come from very ordinary families. और वे लोग जो है एक आवाज चली गई आपकी। Yes, Sibir, we can't hear you. Sibir, we can't hear you, Sibir. Okay, sir. I will. Deepu bhai. Yes. All right, okay, Deepu. All right, Deepu. And as I said, these people, these four people, Joseph, Daniel, Ruth, and Esther, they come from very ordinary families. और ये जो सारे जो चार लोग हैं, रूत हो गया, वो हो गया, और जो शामिल, ये सारे लोग जो है एक साधारण परिवार से ही आते हैं। But God was with them. God enabled them to find favor, and they excelled, and they become incredibly top people in their region. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि उनके समय में और उस जगह में, उनके क्षेत्र में वो लोग बहुत ही बड़े व बहुत ही एक विशाल व फेमस व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बहुतायत के साथ हुआ। सर, आपका भी Yes, Sibir? Yes, I am there. Okay. All right, okay. The only exception in these four names that I mentioned is Daniel, because Daniel came from a princely family, but all the others came from very ordinary families. The point which I wanted to tell all of you, particularly those of you who sing, and even today those of you who sang, you are specially chosen with this ministry, and may God enable you to excel, because you are no ordinary people. You belong to the Almighty God, the Creator, and He can help you outshine the people of this world. This is what I want to share with you. और आज के दिन में मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो चार लोग थे, वे लोग साधारण परिवार से थे। दानियल को छोड़ करके, दानियल एक राजा का परिवार से, एक राजकीय परिवार से वो आते हैं। लेकिन जब चारों लोगों को यदि देखें तो साधारण किस्म के लोग हैं। वे लोग साधारण परिवार से आने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए वे लोग इस्तेमाल हुए
आप लोग भी जो है साधारण किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके लिए आप जो वरदान है, आपका जो टैलेंट है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। All right, may God bless you all, and may God bless the talents God has given to you so that you can multiply it for His glory. और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको जो है आप दिन ब दिन बढ़ाते जाएं। All right, we will continue our study from the expedition of Israel. और आज जैसे कि जो मरु यात्रा, इज़राइल की मरु यात्रा, उसी से हम लोग जारी रखेंगे, चालू रखेंगे। Yesterday, we did some useful study from the wilderness of Shur experience. और पिछले दिन जो है हम लोग कल के दिन हम लोग जो है अशूर के विषय में जो यात्रा थी, मरु यात्रा, उसके विषय में हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था। I'm sorry I could not send the file because the file was too big, and I was checking with Ashish Masi of Delhi, and he told me that, uncle, we can send it through WeTransfer. So I will try and do it today. The file was too big. It is like about 70 MB, and in Google I'm able to send only 33. So I will somehow try and send you the notes of what we covered yesterday. और पिछले दिन मैं जो है इस नोट्स को भेजने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो फाइल थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, 70 MB की थी, लेकिन आज उसको मैं भेजने के लिए प्रयास करूंगा। All right, we will continue our study from the expedition of Israel, and today we will understand from the station called Elim. और जो है आज हमारी जो मरु यात्रा की अध्ययन हम लोग जारी रखेंगे, और आज का अध्ययन में एलीम नामक एक जगह है, उस जगह के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। All right, so let's first read these verses that I've shown on the screen. Exodus chapter 15 and verse 27. आइए हम लोग जो है आज की अध्ययन में कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले निर्गमन का पुस्तक उसका 15वां अध्याय 27वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 15 का 27। तब वे एलीम को आए 15 का तब वे एलीम को आए जहां पानी के बाहर सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। All right, thank you, brother. And now let's also read Numbers 33 verses 9 to 11. बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आइए हम लोग अभी गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय 9वां आयत से लेकर के 11वां आयत तक हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूस में डेरा किया, और आलूस से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले। All right, thank you very much. God bless you. Now, in both these references in Exodus and Numbers, we read about Elim. और इन दोनों जो जगह में, जब वाक्य में हम लोगों ने देखा कि एलिम जगह के नामक जो जगह है, उस जगह के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। The Elim is also known as Elima. और एलीम का जो जगह है, उस जगह को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है एलीमा। Now, the meaning of this word Elim is the hidden dimension of love, the hidden dimension of love. हिडन डायमेंशन ऑफ लव। सो जो Yes. है मेरे प्यारो, जो एलिम नामक जगह का अर्थ होता है कि जो है छुपा हुआ जो है उसका प्रेम, छुपा हुआ उसकी सीमाओं का प्रेम के रूप में जाना जाता है। Now, we generally use this phrase to the person that we love. It can be the husband or the wife, the children or friend. We generally use this phrase and we tell them
you don't know how much I love you. वो मेरे प्यारो जो है हम लोग क्या करते हैं ना, यही शब्दों को पति या पत्नी हो जो है या बच्चों को हम लोग यही शब्दों का इस्तेमाल करके अपना प्यार को जताने की प्रयास करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। Generally, we like to tell our children and daughter, you don't know how much I love you. मेरे प्यारो जो है काफी बार हम लोग यही बात अपने बच्चों से कहते हैं, अपना बच्चे बेटा हो या बेटी, बेटा या बेटी, मैं आपको बस तुम्हें मैं कितना प्यार करता हूँ आपको पता ही नहीं है, ऐसा हम लोग कहते हैं। Generally we tell them when we correct them or when we punish them. Generally, this phrase comes to our mind, and sometimes we tell them, son and daughter, you don't know how much I love you, how much we love you, and that is why we are doing this to you. वो मेरे प्यारो जब अपने बच्चों को जो है कभी कभार हम लोग सुधारते हैं या फिर कभी हम लोग जो है उनको दंड देते हैं, ऐसे वक्त में हम लोग यही शब्दों को निकाल करके कहते हैं, बेटा या बेटी, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूं करके हम जो है उनसे ऐसे बातें करते हैं। Generally, the expression of love comes in the way we treat, the way we speak, the way we address and behave. Generally, the expression of love comes out in that form. मेरे प्यारो जो है ये प्रेम को दिखाना है, तो हम जो है वो उस प्रेम को अपनी बातों से जो है दिखाते हैं, अपनी जो है कैसे किस तरीके से अपन जो है उस प्रेम को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने शब्दों से जो है उस प्रेम को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। Sometimes our actions does not truly portray the inner love we have for a person. वो मेरे प्यारो कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारे जो कर्म होता है वो कर्म अपने दिल में जो प्रेम है वो प्रेम अपने कर्मों में दिखता नहीं है। Despite the best that we try to do, the depth of love that we have, we are not able to express it or not able to show it. मेरे प्यारो हमारे दिल में जो प्यार है, भले ही वो प्यार हो लेकिन अपने कर्मों के जरिए हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। Now, this is what it is for an earthly person like you and me. और ये क्या है ना, ये जो सांसारिक व्यक्ति आप और मेरे लिए है, ये शब्द जो है लागू है मेरे प्यारो। Brothers and sisters, how much more can it be for our loving Heavenly Father? मेरे प्यारो जो है ये परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर है, आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वो पिता परमेश्वर के लिए कितना लागू होगा। We fail to understand the depth and the dimension of His love. मेरे प्यारो हम क्या करते हैं ना, उसकी प्यार को, उसकी प्यार की जो सीमा है, उस सीमा को हम आप और मैं समझने में नाकाम हो जाते हैं। In English, we have this very famous hymn that we sing quite often during worship meeting is, "Oh, the deep, deep love of Jesus." वो मेरे प्यारो अंग्रेजी में एक ऐसा गाना है, ओ कितना गहरा का गहरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। Vast and boundless and free that love is. ओ उसमें कैसा कहा गया है, उस प्रेम जो है अति महान है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, और जो है वो प्रेम इतना गहरा है। That is the meaning, brothers and sisters, of the hidden dimension of love, which is the meaning of Elim. ओ मेरे प्यारो वो जो है एलिम नामक जगह का अर्थ है, वही प्यार को दिखाता है मेरे प्यारो। All right, that is what we're going to study about Elim today. और वही जो जगह के विषय में, वो एलिम के विषय में, उसी विषय के विषय में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। We have covered Ramesses, we have covered Sukkot, we have covered Etham, we have covered Pi-hahiroth, then we've covered the Red Sea crossing, then we have covered Mara, now we have embanked on Elim. मेरे प्यारो हम लोगों ने जो है रामसेस नामक जगह अभी देख चुके हैं, सुकत देख चुके हैं, एथम देखे हैं, पी-हाहिरोथ हम लोग देखे हैं, फिर बाद में मारा, अभी हम लोग जो है एलिम नामक जगह में अभी आप पहुंचे हैं। All right, so in the first the section, we have seen all these places, and the references that we find all these 42 locations is Numbers 33, 5 to 19. ओ मेरे प्यारो
जो है पहली जो सत्र में हम लोगों ने इस विषय को अध्ययन कर चुके हैं और ये जो 42 जगह है वो गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय 5वां पद से लेकर के 19वां पद तक हम लोग इसके विषय में अध्ययन कर सकते हैं। When I started this study, I requested all of you to read Numbers 33:5 to 19 and underline all these 42 names in your Bible, and I trust you must have done it by now. ओ मेरे प्यारो, जब हमारे अध्ययन को हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त में आप लोगों से गुजारिश की थी कि जो है गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय 5वां आयत से लेकर के 19वां आयत तक पढ़ने के लिए मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे और जो 42 जगह है उसको आप लोग जो है अपना पेंसिल या फिर कलर से मार्क किए होंगे। If some of you have not done it, I would advise you to do it. आप लोगों में से यदि कोई किया नहीं है तो अभी भी मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि आप लोग पढ़ के उसको कीजिए। All right, now in Exodus chapter 16 and verse 1, we find where this place Mara is. और मेरे प्यारो जो है गिनती का पुस्तक उसका 16 अध्याय पहला पद को यदि पढ़ेंगे तो ये जो मारा नामक जगह है वो कहां पर है आपको और मुझे पता चल जाएगा। All right, can we read that verse? आइए हम लोग उस पद को पढ़ लेते हैं। गिनती का पुस्तक उसका 16 अध्याय पहला पद। सर गिनती के एक्सोडस निर्गमन Exodus निर्गमन। 16:1. यस निर्गमन सॉरी निर्गमन 16 का 1। फिर Yes. फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। All right, now this place Elim is between Mara and the wilderness of Sin. मेरे प्यारो, ये जो एलिम नामक जगह है वो जगह क्या है? न मारा और जो है सिन के बीच में जो है उसकी अस्तित्व है वो जगह है। Yeah, Sin and Sinai, they are all the same. और सिन और जो है सीनोय ये जो पहाड़ ये दोनों एक ही है। All right, now this place Elim is found near the Red Sea shore. Red Sea shore. और ये जो जगह है लाल समुद्र के पास में पाया जाता है। Now in the first verse, first reference that we read during the introduction, I think it is in Exodus 15 and verse 27, we read that it is the Bible, one of the references say the Israelites traveled on to the oasis of Elim. So Elim is a place which has a natural oasis. मेरे प्यारो, जो है एलिम नामक जगह में वे लोग आए थे, इजराइल के लोग आए थे, वहां पर जो है उनको क्या है ना छोटा सा जो है एक मरु जल जो है उनको दिखाई देता है। छोटी सी एक तालाब सा जो है मरुपच्चा बोलते हैं उसको, वो जगह दिखाई देती है। A natural oasis is in a desert. When you're traveling a desert, a place that is so dry, you find a place which is so refreshing where you get nice water, you get nice cool place to rest with trees and all that. That's called the oasis. मेरे प्यारो, ओएसिस का अर्थ होता है जहां पर चारों ओर मरुभूमि होती है और उसमें छोटा सा एक जल का सोता होती है, जो जल का एक छोटी सी तालाब होती है, उसको जो है ओएसिस व मरुपच्चा कहा जाता है, जहां पर बहुत ठंडी होती है। और गर्मी जगह में जब आप यात्रा करते हैं वहां पर आप उस ठंडी जगह में आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। And in this place Elim, the Bible specifically mentions, scripture specifically mentions, there are 12 wells and 70 date palms. और यहाँ पर यदि हम लोग देखें मेरे प्यारो, तो परमेश्वर जो है परमेश्वर का वचन में वास्तविक रूप से हम लोग 12 ऐसे जो है कुआं और 70 जो खजूर का पेड़ जो है दिखाई देता है। What you see on your screen is a small picture of an oasis. और मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में जो आपकी स्क्रीन में जो चित्र देखते हैं, वो चित्र जो है एक छोटा सा मरुपच्चा के विषय में आप जो है उस चित्र को देख पाएंगे। This might not depict the 12 springs and the 7 date palms, but this is a kind of a picture which is closer to what
we can understand as an oasis. ओ मेरे प्यारो, ये जो है जैसे कि 12 कुआं और जो है 70 खजूर का पेड़, वो जो है वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये उसके जैसा है। All right. See, when you are going through a desert, when you're walking in the dry place where it is so sunny and scorchy, and it makes you feel very thirsty, it makes you very dry. Now, when you look at a place like this, which is green, which filled with date palms, and it's got lovely water springs, that itself will refresh your heart and your mind. That is the experience of the oasis. मेरे प्यारो, जो जब आप लोग जो है उस मरुभूमि में यात्रा करते हैं, सूखा है, पूरा गर्मी है, ऐसे वक्त में जब आप यात्रा करते हैं, आपको छोटा सा एक हरा भरा जगह, यदि खजूर का पेड़ हो या कुछ भी हरा भरा दिखाई देती है, उस जगह को देखते ही आपका मन जो है तृप्त हो जाता है, आपका मन खुश हो जाता है। वैसे वही जगह एलीम जगह जो है दर्शाता है मेरे प्यारे। That is the place Elim, which the children of Israel came up to. ओ मेरे प्यारो, वही जो जगह है एलीम, वहां पर इज़राइल के लोग आ पहुंचे थे। Now, in the map that I've been using in the last few classes, it's the same map that I plotted the places up to Elim. If you can see, follow the white arrows. Those are the places we have covered, and 6 is Elim that we are covering today. ओ मेरे प्यारो, आप लोग देख सकते हैं जो सफेद तीर का निशान है, उस जगह अभी तक हम लोग जो है कवर कर चुके हैं, और जो 6वां नंबर है, अभी उसी जगह को अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। All right, and the map here, this is the place called Elim. You see the black triangle where the arrow points toward, that is Elim. मेरे प्यारो, अभी जब आप लोग जो काले रंग का जो त्रिकोण है, उस जगह को यदि आप लोग देखेंगे, वही जगह आपको दिखाई देगा कि वो जगह एलीम नामक जगह है। All right. We also read in Exodus 17. I think it's Exodus 17:1, that the Elim location, the site or the direction from south to north, is specifically mentioned there. मेरे प्यारो, यदि आप लोग जो है उस जगह के विषय में यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो जो है आपको जो 27वां अध्याय में हम लोगों ने देखा, और 16 का पहला आयत में भी हम लोगों ने देखा कि Okay. वो जगह क्या दिखाता है कि जो है हम लोग देखते हैं दक्षिण से जो है उत्तर के ओर वो दिशा निर्देश करता है। For the first time when they come to Elim, they now are faced in such a direction, they are walking straight towards Mount Sinai. मेरे प्यारो, जब पहली बार वे लोग एलीम की ओर आते हैं, उस वक्त जो है जो सीनोई का जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ओर वे लोग आते हैं। That is what we read in Exodus 16:1. So you find Elim before enough, and once you cross Elim, then you find pointed the wilderness of Sin, and that points directly to Mount Sinai. मेरे प्यारो, जब जो एलीम नामक जगह आने के बाद जो है हम जो है सीन नामक जगह की ओर आते हैं, उसकी आगे की ओर हम लोग यदि जाएंगे, तो जो है सीनोई का पर्वत हमें दिशा निर्देश करता है। All उस right. जगह की ओर हम लोग जा All सकते हैं। right, to picturize that in the map next that you see, just follow my cursor. You got a place called Mara here, which I'm circling with my cursor. और अब नक्शे में आप लोग देख सकते हैं, उस जो है चित्रों को देख सकते हैं, जो कर्सर घूम रहा है लाल रंग का, वो जगह मारा है। And then this is Elim. और उसके बाद जो है लाल रंग का निशान आप लोग देख सकते हैं, उसमें जो कर्सर घूम रही है, वो भी वो जगह जो है एलीम को दर्शाती है। Yes, now they come here and take a left, which is a 90 degrees left, pointing towards Sinai, and between Elim and Sinai is the wilderness of Sin. मेरे प्यारो, यदि आप जो है उस जगह से लेकर के जो 90 डिग्री आप लोग यदि माप करके देखेंगे, तो वहां जो है आगे की ओर क्या दर्शाता है ना, वो जो है सीनोई का पर्वत है, सीनोई का पहाड़ के ओर ले जाएगा। All right, so the wilderness of Sin is between Elim and Sinai. So that is the direction that they are heading, but now they are camped, or they are staying in Elim. मेरे प्यारो, वो जो है हर जगह हम लोग यदि देखें, तो जो है उसके बीच में एलीम और जो है सिन जो पहाड़ है,
उसके बीच में, सीनोई का पर्वत के बीच में है। All right. Now, in the next slide that you see, it's a comparison between two biblical scholars and research scholars who have found two different directions of the journey which the children of Israel have made. और मेरे प्यारो, अभी वर्तमान में जो स्क्रीन में देखते हैं, दो ऐसे जो है विज्ञान पंडित जो है परमेश्वर का वचन का विषय में उन्होंने जो है इस विषय को मापदंड करके जो है उन्होंने बताया है। This is just for your academic purpose. I'm not going to spend time on this, but the truth of this fact of the sheet is there is so much of truth and study and details that biblical scholars are finding out. It just points out to the fact that the Bible is true to the last letter. मेरे प्यारो, ये जो है आप लोगों की शिक्षा के लिए मैं जो है इस बात को लाना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय यहाँ पर बिताना नहीं चाहता, लेकिन जो परमेश्वर का वचन का जो विज्ञत लोग हैं, जो है पंडित लोग हैं, उन्होंने क्या किया है ना, उस वचन को गहराई से पढ़ करके उसका इस निष्कर्ष में वे लोग आए हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, एक एक बिंदु भी परमेश्वर के द्वारा उनका जो है निकला हुआ वचन है। And in the next map that you see there, you see the locations Mara and Elim, the Red Sea camp, and the wilderness of Sin and Dofka. All these, you see the number of days they have stayed there. You see so much of study and research has gone into it, plotting the Bible to practically what has happened. And this is only for our information that we, as we read and study this in our mind, the Holy Spirit confirms to us that the Bible is the infallible truth and nothing but the truth. और मेरे प्यारो, जैसे कि हम लोग उस जगहों को देखेंगे तो जो है आपको दिखाई देगा, लाल समुद्र के बाद जो है मारा, एलीम की जगह में वे लोग आते हैं, उसकी दूरी जो है यहाँ पर बताई गई है, कितना दिन वहां पर रुके उस बात को वहां पर बताई गई है। मेरे प्यारो, ये सब कुछ जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन जो है उसमें कोई भी त्रुटि व कोई भी गलती नहीं है मेरे प्यारो। All right. Okay. That's just to show that I brought this map out. All right. Now, understanding a little more about Elim. Elim is also known as Luke Kome. It's in Hebrew, it's known as Luke Kome. वो मेरे प्यारो, जो एलिम नामक जगह है, उस जगह को जो है दूसरे इब्रानी भाषा में यदि देखें तो लुक कोमे के रूप में जाना जाता है। It is also known as the White Harbor and the White Village. मेरे प्यारो, ये जो जगह है उस जगह को जो है सफेद बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, बस सफेद गांव के रूप में जाना जाता है। Yes, Elim is a major seaport. और एलिम जो जगह है एक बहुत अच्छा समुंदर में जो क्या कहते हैं बंदरगाह बोलते हैं, वो जगह है जहां पर जहाज आना जाना करती है। A seaport is a place where a lot of commercial activity happens, which means a lot of export happens, import happen. You use the sea to send and trade cargo. So it was a very busy place. It's an important place called Elim. मेरे प्यारो, एलिम का जो जगह को देखेंगे तो फिर ये जगह जो है बहुत व्यस्त एक शहर थी। वो शहर ऐसी एक शहर है जहां से जो है माल वगैरह समुद्र के रास्ते में भेजा जाता है और फिर वहां से जो है माल वगैरह लाया जाता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। Now, in during Apostle Paul's time, this was a shipping hub. A hub is because I was in Delhi, I remember this ISBT, Interstate Bus Terminus, and ISBT in Delhi is a place where you have easy access from one location to many states, to many places. That's called a hub. Now, this Elim was a shipping hub during Apostle Paul's time. मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस के समय को यदि देखें तो ये जो है क्या करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह को माल भेजने का जो है मुख्य जगह है, जो मुख्यालय के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि अंकल कह रहे थे कि दिल्ली में आईएसबीटी नामक एक जो है जगह, मतलब ये है कंपनी है, तो वहां से क्या करते हैं ना, सब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो है कार्य होती है, कार्यालय होता है, मुख्य कार्यालय। इस तरीके से प्रेरित पौलुस के समय में एलिम जो जगह है ये मुख्य कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
ISBT is Interstate Bus Terminal. Now, it is from that place that it connects Delhi with many other states and many other places. You have buses that are terminating and that are originating from that place. So that's called ISBT. ISBT जो जगह है, जो एक बस स्टैंड है, जहां से जो है एक शहर से दूसरे शहर में बस भेजा जाता है। It's if I can use the word in Hindi, bus hadda, they say, so it's something like that. All right. So बस के Elim, अड्डा। yes. So Elim is such a place, and for all imports in Elim, a 25% duty was levied. मेरे प्यारो, यदि हम लोग देखें तो एलिम नामक जगह है, वो जगह एक जो है जहाजों का अड्डा थी, और वहां पर जो है 25% जो है जो टैक्स के रूप में वहां से पैसा लिया जाता था। Yeah, because anything that you import in India, depending on the commodity you import, there is a tax that the government levies. Similarly, in those days, when you import through this port in Elim, through the harbor in Elim, there was an import duty of 25% that was taxed. और मेरे प्यारो, यदि भारत से भी कोई भी चीज यदि भेजते हैं, तो जो है सरकार आपसे कर लेती है और टैक्स लेती है। वैसे ही एलिम से भी कुछ भी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। उस समय कोई भी सामान हो, उसमें से जो है 25% जो टैक्स के रूप में वे लोग पैसा लेते थे। And the children of Israel traveled 29 days to reach Elim from Goshen or from Egypt or from Ramesses. मेरे प्यारो, जो है वे लोग गोशेन बा रामसेस से वे लोग एलिम को आना था, तो उनको करीबन 29 दिन यात्रा करनी पड़ी थी। Bible scholars, there are a few Bible scholars, as I was reading and preparing for this message, for this study, various Bible scholars use Elim as a metaphor. Metaphor is an illustration or a parallel or an example. बहुत सारे ऐसे बाइबल के जो है पंडित है, जो विज्ञत लोग हैं, वे लोग एलिम नामक जगह को एक छाया चित्र के रूप में बा एक उदाहरण के रूप में वे लोग इस्तेमाल करते हैं। I have captured a few of the Bible scholars, their names and what they say about Elim. What does Elim represent? For us, when we talk about the cross, we know what the cross means. Similarly, Elim, to Bible scholars, what it means is what I've captured on the slide here. मेरे प्यारो, कुछ ऐसे बाइबल स्कॉलर्स हैं, बाइबल के जो विज्ञत लोग हैं, वे लोग उस जगह को जो है एक दृष्टांत के रूप में बा जो है एक उदाहरण के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे कि क्रूस हमारे लिए क्या है, वैसे ही ये जो बाइबल स्कॉलर्स है, उन लोगों के लिए एलिम नामक जगह क्या है, उस बातों को मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन में मैंने दिखाया है। Tertullian, famous Bible scholar, he says Elim, when he talks about Elim, he says Elim represents wood that restores sweetness to water in Christ. As much as how Christ brings sweetness in a bitter life, so much is Elim like the wood which restores sweetness in the bitter waters of Mara. That's what the Tertullian, the Bible scholar, says. तरतुलियन इस बात को कहते हैं, जो इस बात को कहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति कड़वाहट का मन से प्रभु यीशु मसीह में मन फिरा करके आता है, उसके जीवन में जो है वो मधुरता आ जाती है। जैसे कि मारा नामक जगह है, जो लकड़ी डालने के बाद, डालियां डालने के बाद जो मधुर हो जाती है, वैसे ही ये जो एलिम नामक जगह जो उतना ही प्रभु यीशु मसीह में मधुरता लाता है। Now, another Bible scholar called Ambrose, now he says the waters of baptism is not important until the cross of Christ is preached, which means he says salvation leading to baptism is most important. That's what Ambrose says. वो मेरे प्यारो, आप देखिए अम्ब्रोस का कहने का अर्थ यह है कि जो है क्या क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जब तक प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस का सुसमाचार को प्रचार नहीं किया जाता, तब तक जो है बपतिस्मा लेना कोई उसकी मूल्य नहीं है, वह व्यर्थ है। इस बात को वो कहते हैं। All right, so these people are using Elim as a metaphor, as an example, and they are driving different truths to portray to those who are learning more about the scripture.
मेरे प्यारो, ये जो दोनों जो है बाइबल स्कॉलर्स हैं, वे लोग जो है एक मेटाफोर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में वे लोग जो है ये गेलिम नामक जगह को इस्तेमाल करते हैं। Another Bible scholar called Jerome, now he says the 70 palm trees we read, which is what we read in Exodus 15 and all that, the last in verse 27, and Jerome says the 70 palm trees are like the 70 disciples of Jesus Christ. और जेरोम नामक एक जो है प्रभु के जो दास है और जो है एक बाइबल स्कॉलर हैं, वो इस बात को कहते हैं जैसे कि 70 वहां के जो खजूर के पेड़ थे, वे 70 प्रभु यीशु मसीह के चेले को दर्शाते हैं। All right, and Maximus of Turin, he's another Bible scholar. Maximus of Turin, now he says the bitterness of water is equal to the Old Testament law. मेरे प्यारो, जो है मैक्सिमस तुरीन के जो मैक्सिमस है, वो इस बात को कहते हैं जैसे कि जो कड़वा पानी है, वो पानी पुराना नियम को दर्शाता है। We all know when God gave the 10 commandments to Moses to be given to the children of Israel, not one person on earth could follow that. 100%. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उसमें से 1% लोग भी उस आज्ञा को संपूर्ण रीति से पालन नहीं कर पाए। So then why did God give the 10 commandments? सो प्रभु यीशु मसीह ने उस 10 आज्ञा को क्यों दिया मेरे प्यारो? God gave us 10 commandments to show his expectation of a righteous man or a righteous person to live on this earth. That is why God gave the 10 commandments. मेरे प्यारो, प्रभु ने व परमेश्वर ने इसीलिए 10 आज्ञा को दिया ताकि जो है वो जैसा चाहता है एक धार्मिक जीवन एक व्यक्ति जिए, जो है इसीलिए परमेश्वर ने उस 10 आज्ञा को दिया था। It is to show what God expects of man. और वो इसीलिए उन्होंने दिया ताकि जो है परमेश्वर एक मनुष्य का जीवन से क्या चाहता है। This is as per the Old Testament. और ये पुराना नियम के विषय में है मेरे प्यारे। That is why Maximus of Turin is saying the bitterness of water is equal to the law in the Old Testament. और इसीलिए जो है तुरीन की जो मैक्सिमस है, वो इस बात को कहते हैं कि जो है ये कड़वा पानी के समान है जो पुराना नियम को दर्शाता है। But what do we read about Christ? When he went to the cross, he blotted out the handwriting and he blotted out all ordinances, which means all the 10 commandments, he was the only one who fulfilled it on the cross for you and for me. मेरे प्यारो, क्या हम लोग जो है नया नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, वो इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में यदि देखें तो जो है जो लिखी हुई बात को संपूर्ण रीति से एक ही एक व्यक्ति पूरा किया था, जो पुराना नियम का आज्ञाओं को संपूर्ण रीति से पालन किया था, वो प्रभु यीशु मसीह है। Very specifically, the scripture says he blotted out the handwriting of all ordinances, which means the 10 commandments that were given through Moses to the children of Israel, he impaled it after Christ was crucified. He was the only person with a capital P or the man with a capital M who could fulfill everything. So he blotted out everything. So no longer we come under the law. मेरे प्यारो, जो है हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो पुराना नियम का एक ही एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है अनोखा है, और जो एक ही एक मनुष्य है वो मनुष्य भी अनोखा है। वो व्यक्ति ने पुराना नियम का जो हस्तलिपि थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला। संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, उस नियम को पालन किया था। That is why, brothers and sisters, we are the chosen generation, the peculiar treasure, the holy nation. We are very, very special or super special to God, every one of us as believers. मेरे प्यारो, इसीलिए ही आप और मैं जो है एक चुने हुए लोग हैं, एक जो है अनोखे लोग हैं, पवित्र जो है एक जाति के रूप में हम जाना जाते हैं, एक जो है अनमोल लोग हैं मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के लिए है। And these are what a few of the Bible scholars are comparing Elim to. और मेरे प्यारो, यही एक जो है विषय है जो बाइबल के स्कॉलर लोग हैं,
बाइबल के जो पंडित लोग हैं इस तरीके से वे लोग तुलना करते हैं। All right, let's do a small contrast between Mara and Elim. आइए जो मारा नामक जगह है और एलिम नामक जगह है, इन दोनों के बीच में जो भेद है, विरोधाभास है, उसको हम लोग लिखने के लिए प्रयास करें। As I told you just now, Mara talks about the bitterness of the law, but Elim talks about the gospel of grace, or the gospel in all its humanity. मेरे प्यारो, मारा नामक जगह है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कड़वाहट को दर्शाता है, लेकिन एलिम नामक जगह है, इसका जो है प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको दर्शाता है, जो उसका मधुरता है उसको दर्शाता है। All right. Now in Elim, you see the 12 pure water springs and 70 flourishing palms. और एलिम में यदि हम लोग देखें तो 12 ऐसे जो है जल के सोते हैं व कुआं है, उसको हम लोग देख सकते हैं, और उसके साथ साथ 70 ऐसे खजूर के पेड़ को हम लोग देख सकते हैं। In Mara, we saw the bitterness of the law. That's what it means. और मारा में हम लोगों ने देखा कि जो है जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट का जो व्यवस्था को हम लोगों ने देखा। There was water in Mara, but you could not drink. There is water in Elim, which is sweet. मेरे प्यारो, मारा में भी पानी है, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं सकते, जो कड़वाहट का पानी है। एलिम में पानी है, जो मधुर पानी है, उसको आप पी सकते हैं। Now in Mara, we know that the children of Israel traveled for 3 days. Then they came to a place, they saw water, they were so thirsty, they wanted to drink, but they could not drink that water because it was bitter. मेरे प्यारो, जो मारा में आने से पहले उन्होंने 3 दिन की यात्रा की थी, वो लोग बहुत प्यासे थे, वो पानी को देखा, लेकिन वो पानी जो है कड़वा था, इसीलिए वे लोग पी नहीं पाए। What does it mean? It means after all their effort, the 3 days of travel, the result was it brought them weariness, but refreshment in Elim after their labor brought them so much of rejuvenation, so much of strength. It brought them so much of solace. मेरे प्यारो, अब देखिए, ये जो है इन दोनों जगह को यदि देखेंगे तो जो है कड़ी मेहनत करने के बाद भी मारा नामक जगह में आते हैं, वे लोग बहुत प्यासे होने के बाद भी जो है उस पानी को भी पी नहीं पाते, उनका प्यास नहीं बुझती। लेकिन आप यदि देखें, कड़ी मेहनत के बाद जो है एलिम नामक जगह में आते हैं, वे लोग उस पानी को पी करके अपना प्यास को वे लोग बुझा लेते हैं, उनको बहुत तसल्ली और शांति मिलती है। Whatever man does, he cannot appease God by his works. He can never appease God by his works. But when he comes to the Lord through salvation, he does not have to do a single thing. ओ मेरे प्यारो, जो है मनुष्यों परमेश्वर को किसी भी कर्मों के जरिए यदि प्रसन्न करना चाहता है, वो अपना कर्मों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता मेरे प्यारो। लेकिन एक व्यक्ति उद्धार पा करके उस प्रभु में जब आता है, उस व्यक्ति को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। And so Elim brings out the fact that they were thirsty, they were refreshed by the sweet waters, and the palms denote the victory that they had when they refreshed themselves at Elim. मेरे प्यारो, आप देखिए, जब वे लोग एलीम में आते हैं, उनका प्यास, जितना प्यास था, सब कुछ वे लोग बुझा लेते हैं। और जो खजूर का जो पेड़ को क्या दर्शाता है ना, वो पेड़ का जो डालियां हैं, उनका विजय को दर्शाता है मेरे प्यारो। All right, so what does Elim practically mean to a believer? मेरे प्यारो, एक विश्वासी के लिए एलीम नामक जगह क्या दर्शाता है? It means it brings out the deeper inner strength, the spiritual strength of a believer. मेरे प्यारो, एलिम जो है क्या दर्शाता है न, एक अंदरूनी ताकत, अंदरूनी सामर्थ्य एक विश्वासी के जीवन में लाता है, वही एलिम नामक जगह जो है दर्शाता है। In Mara, it brings out the loss, the disappointment, the pain, the sorrow in illness. That is what Mara's experience. But Elim is you overcome that and you come to a place of refreshment. You come to a place of the hidden dimension of the love of God, and you are nourished, you are encouraged, you are motivated to carry on. That is the experience of Elim.
मेरे प्यारो, जब मारा को यदि हम लोग देखें तो एक एक खोया हुआ पन को हम लोग देख सकते हैं, एक दुख को हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारो, और उसके साथ साथ एक निराशा को देख सकते हैं। लेकिन जब एलिम नामक जगह को यदि हम लोग आते हैं, वहां पर क्या देखते हैं ना, वहां पर जो है खुशी को देख सकते हैं, आनंद को देख सकते हैं, और एक एक तृप्ति को हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारो। Brothers and sisters, every believer will have an experience of Mara. मेरे प्यारो, जो है हर विश्वासी को मारा का अनुभव से होते हुए गुजारना पड़ेगा। But after the Mara experience comes the Elim experience, the refreshing experience of God's dimension of deeper love that you and I don't understand. Only when we pass through the Mara experience will we understand that dimension of love which comes through the Elim experience. मेरे प्यारो, जब तक हम मारा का अनुभव से होते हुए नहीं गुजरेंगे, हमें एलीम की अनुभव नहीं आएगी। जब मारा का अनुभव से होकर के गुजरने के बाद ही मेरे प्यारो, जो एलीम का अनुभव आपके और मेरे जीवन में आ सकता है, वो एलीम का अनुभव जो है हमें तृप्ति और संतृप्ति को दे सकता है। Brothers and sisters, when we go through the experience of Mara, remember this, that after Mara comes Elim. मेरे Elim प्यारो, is जब a मारा का अनुभव yes, go ahead. जब मारा का अनुभव से होने के बाद ही हम लोग जो है एलीम का अनुभव को हम लोग जो है उसको अनुभव कर We सकते हैं। must be prepared that the Elim experience is waiting for us. The Elim experience shows to us the deeper dimension of God's love, which will be like that oasis, which will refresh us, which will comfort us, which will give us everything which the world cannot give, but only this God can. ओ मेरे प्यारो, जब जो है हम क्या करना है, मारा का अनुभव के बाद हमें इसी का ताक में रहना है कि जो है एलीम का अनुभव आने वाला है। एलीम का अनुभव जो है आपको और मुझे, जो परमेश्वर का जो गहराई का जो बिना सीमा, कोई सीमा ही नहीं है, उस प्रेम का अनुभव में हो करके आप और मैं गुजर सकते हैं। वो प्रेम, वो जो है जो एलीम का अनुभव है, वो अनुभव क्या है ना, जो मरुपच्चा है, वो पानी, और जो है जो खजूर का पेड़ का जो तसल्ली है, वो आपको और मुझे दे सकता है, जो ये संसार आपको और मुझे नहीं देगा। Beautiful translation. God bless you, Sibir. Now, when we go through the experience of Mara, it is Satan who will discourage us. It is Satan who will bring doubts in our mind. It is Satan who will move us away from God. But brothers and sisters, we know to do better than what Satan can do. We need to encourage ourselves, because next comes the experience of Elim, where we can understand God's in-depth love for you and me. मेरे प्यारो, जब मारा का अनुभव से होते हुए हम लोग गुजरते हैं, उस वक्त शैतान जो है आपका और मेरे मन में संदेह पैदा करता है, आपके और मेरे को जो है परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन मेरे प्यारो, आप और मैं निरुत्साहित न हो करके प्रोत्साहित हो जाए, क्योंकि एलीम नामक जगह आपके और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। Why should we talk about Satan now? वर्तमान में आपको और मुझे शैतान के विषय में बातें करने का क्या जरूरी है? Because we read in the scripture that he is the accuser of the brethren. ओ मेरे प्यारो, शैतान के विषय में देखें तो भाइयों के बारे में जो है आरोप लगाने वाला एक व्यक्ति है। You see, when Job was suffering, when in the court of heaven, along with all the other people, before the Lord appeared Satan, and God asked Satan, where are you coming from? He said, I am all around the world. I'm seeing everyone, watching everyone. And he comes and complains about Job. That is the work of Satan. He takes us through the experience. God takes us, when we go through the experience of Mara, Satan waits for us to fall. And then he goes to the courts of the Lord and says, see, look at your son, look at Sam Abraham. He's discouraged, he's complaining, he's talking against you and all that stuff. That is why he's called the accuser of brethren. So we must be very, very careful, brothers and sisters. मेरे प्यारो, जब आयुब के जीवन में देखें, वो धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का उस दरबार में हम लोग देखते हैं आयुब के विषय में जो है शैतान क्या कर रहा है। वो जब परमेश्वर के दरबार में जाता है, वो कहता है कि जो है परमेश्वर पूछते हैं
तुम कहां से आए? उस वक्त कहता है मैं दुनिया के इधर उधर भटकते हुए सभी लोगों को देखते हुए मैं आ रहा हूं। देखो तुम्हारा जो बेटा, तुम धार्मिक कहते हो उस आयुब को देखो, वो व्यक्ति जो है कैसा है, और इस बात को जो है उसके ताक में रहता है। शैतान इंतजार करता है कि कौन सा व्यक्ति जो है पाप में गिरे। मेरे प्यारो, जो है अंकल के विषय में यदि देखें, साम अब्राहम, या फिर सिबीर के विषय में देखें, आपके विषय में वो जो है ताकते रहता है और आपके विरुद्ध वो कंप्लेन करता है, वो आरोप लगाता है। देख तेरा बेटा जो है कैसा काम को कर रहा है, कैसा पाप कर रहा है, ऐसा आरोप वो लगाने के लिए तैयार रहता है मेरे प्यारे। Brothers and sisters, I do not know what situation each one of you are in. Whatever be the situation, whatever be the thickest of troubles or problem or grief or sorrow or the bitter things that you're going through, remember one thing: after the experience of Mara comes the experience of Elim. मेरे प्यारो, कौन सी परिस्थिति में आप लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा परिस्थिति में क्यों ना हो, जैसा जो है उस गहराई का, कठिनाइयों का परिस्थिति में क्यों ना हो, दुख में क्यों ना हो, कड़वाहट में क्यों ना हो, एक बात ध्यान रखना है मेरे प्यारो, मारा का अनुभव के बाद जो है एलीम का अनुभव आने वाला है। And that is in the experience of Elim, we understand the depth of God's love. Many a times when sorrow attacks us, many a times when sickness attacks us, many a times when financial problems attack us, many a times when there are adverse problems that attacks us, we tend to question and turn bitter. We never understand the love of God at that time. But after that comes the experience when God shows us how much important we are, how much he loves us deeper. That's all, brothers and sisters, I can explain. I'm a human being. That is all that I can explain. But I'm sure the Holy Spirit and God will help every one of us tide over every such situation of Mara in our life and bring in that experience of Elim, which is our blessed hope. मेरे प्यारो, मैं नहीं जानता कि कितना गहराई का दुख और कठिनाइयों का परिस्थिति में आप लोग जाते हैं, और मेरे प्यारो कितना आप लोग बीमार हो सकते हैं, जो है आपका आर्थिक अवस्था कैसा है मैं नहीं जानता, और जो है आपको कितना विपरीत परिस्थितियों से होकर के आप गुजरते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो है ऐसा परिस्थितियां आती है, हम सवाल उठाते हैं, परमेश्वर का प्रेम को आप और मैं समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है मेरे प्यारो, मारा का अनुभव के बाद जो है आपको एलीम का अनुभव आने वाला है, और उसमें परमेश्वर का प्यार जो है इतना गहरा है, उस प्रेम को आप और मैं चख सकते हैं। All right. After Elim comes the Red Sea experience. By the Red Sea, they camped by the Red Sea, is what we read. मेरे प्यारो, एलीम के बाद वे लोग जो है उस लाल समुंदर के पास आ करके जो है अपना डेरा डालते हैं। Let's read Numbers 33 and verse 10. आइए गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय 10वां आयत को पढ़ ले। Numbers 33 verse 10. गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय 10वां पद। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए। There what we read, they camped beside the Red Sea after they left Elim. और एलीम को छोड़ने के बाद, एलीम से कूच करके उन्होंने जो है लाल समुद्र के पास डेरा किया। After they had that refreshing experience of that dimension of love, after their whole spirit, their whole physical body, the spirit is satiated with God's love, they have to move on. They cannot stay in their journey. They have to move because it's a journey. It's not a destination. They have to move. That is what is happening in the life of children of Israel now. मेरे प्यारो, जो है हम लोग देखते हैं एलीम में यहाँ करके कुछ दिन उन्होंने डेरा किया, जब शारीरिक ताजापन को उन्होंने महसूस किया, वहां पर जो है वहां पर वे लोग रह नहीं सकते, क्योंकि वे लोग यात्रा में हैं, उनका अंतिम गंतव्य पथ जो है खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए उनको फिर से जब शारीरिक ताजापन, आत्मिक ताजापन मिलने के बाद वे लोग जो है आगे की ओर
यात्रा करते हैं। The camping at the Red Sea means that they are being prepared for the future journey. They are being rejuvenated, which means God is equipping them with strength, similar to when Elijah, when there was that famine, the place was dry. They had no food, they had no water. He was fed by the ravens. The angel fed him, the ravens fed him, and he was sustained for 40 days there. Similarly, the Red Sea experience, camping by the Red Sea, is to rejuvenate and to prepare God's children for the further journey. That's the meaning of the camping at Red Sea. मेरे प्यारो, जो लाल समुंदर की जो डेरा डालना, उनके लिए जो है क्या है, आगे के यात्रा के लिए उनको तैयार करना है। वो तैयारी कैसा है ना, जैसे कि एलिया के जीवन में यदि देखें तो जो है वहां पर क्या हुआ ना, अकाल आई थी, चारों ओर सूखापन था। उस वक्त जो है जैसे कि आकाश से उस जो है परमेश्वर पक्षी भेजा, कौवा भेजा, परमेश्वर के स्वर्ग का दूत भेज करके एलिया को भोजन खिलाया था। उस भोजन से जो है एक बार खा करके वो 40 दिन तक जो है वो यात्रा कर पाया था, अपना जीवन को वो गुजार पाया था। वैसे ही लाल समुंदर जो जगह है, उनके लिए आगे के यात्रा के लिए तैयारी है मेरे प्यारे। All right. Now that's all. I'm just leaving it at that. So the camping by the side of the Red Sea is to rejuvenate, to strengthen them for their onward journey. और यहाँ पर मैं इस बात को यहीं पर छोड़ता हूं, जो है लाल समुंदर दिखाता है कि आगे के और जो है यात्रा करने के लिए उनके लिए तैयारी थी। All right. Then in the next verse, in Exodus 33, verse 11, we read about the next place where they camped. It is called this wilderness of sin, or the sin wilderness. मेरे प्यारो, आगे की ओर हम लोग देखें तो अगला जो उनकी यात्रा थी वो ये है कि सिन का जो मरुभूमि थी, उसकी ओर वे लोग जाते हैं। वो गिनती का पुस्तक 33वां अध्याय 11 पद में। Let's read that verse 11 of Numbers 33. और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। Yeah, they camped in the wilderness of sin. और वे लोग जो है सीन नामक जगह में उन्होंने डेरा किया। As I said earlier, the journey should continue. They are on a journey. They are not reached their location, so the journey must continue. मेरे प्यारो, जैसे कि उनका जो है अंतिम गंतव्य पथ खत्म नहीं हुआ है, उनकी यात्रा आगे करना पड़ेगा, इसीलिए उनको यात्रा जो है करने की आवश्यकता They है। came through the experience of Elim. They came through the experience of camping at the Red Sea, but that was just a temporary relief that is given to rejuvenate them, to strengthen them, to prepare them for their onward journey. But they must move forward. They cannot stagnate in this place. और मेरे प्यारो, जैसे कि एलिम नामक जगह है और जो है लाल समुंदर जो जगह है, वहां पर वे लोग जो है आंशिक रूप से उनको जो है ताकत और जो है आगे जाने के लिए उनको जो बल मिलता है, और वहां पर वे लोग रुक नहीं सकते। उनकी यात्रा जो है आगे करने की जरूरत थी और वे लोग एक जगह ठहर नहीं सकते, उनको आगे बढ़ना है। Brothers and sisters, in the life of a believer, we will continue to face challenges. We cannot stagnate in one place. We must move on and move on and move on. We cannot be discouraged. We cannot sulk. We cannot sit in a corner. We cannot brood over things. But God gives us experience of Elim. God gives us the experience of camping at the Red Sea. God gives us the experience of camping in the wilderness of sin, preparing us for the next challenge that we have to take. This is a continuous exercise in the life of a believer. मेरे प्यारो, एक विश्वासी का जीवन में देखें तो जो है उसको जो है एलिम नामक जगह है उसका अनुभव में आना है, लाल समुंदर जगह है उसके अनुभव में आना है। क्योंकि एक विश्वासी जो है एक जगह में बैठ करके वो सोचने में पड़ जाए, एक जगह बैठ करके उस अनुभव को लेकर के जो है पश्चाताप करते रहे, ऐसा नहीं है। विश्वासी का जीवन में जो है उस एलिम नामक जगह का अनुभव करना है, लाल समुद्र का अनुभव करना है, सीन नामक जगह में जाकर के उसको अनुभव करना है। एक विश्वासी को आगे बढ़ते रहना है। वो जो है वो जगह तैयारी है आगे की ओर जाने के लिए मेरे प्यारे। All right, let's turn to Exodus chapter 16. Just a few more minutes and then I will finish.
Exodus 16 and verse 3. I will finish up this particular station and then we'll close. Maybe another और 5 इस minutes. Exodus और 16, 3. आइए हम लोग जो है निर्गमन का पुस्तक उसका 16 अध्याय 3 आयत को हम लोग पढ़ ले। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। Brothers and sisters, when they reach the station of wilderness of sin, something very important happens. They are deprived of their food to live, the food for sustenance. मेरे प्यारो, जब सिन नामक जो मरुभूमि में वे लोग आते हैं, वे लोग क्या है ना, वहां पर जो है परमेश्वर से दूर जाने का जो काम को हम लोग देखते हैं, वे क्या है ना अपने भोजन के लिए परमेश्वर को जो है कंप्लेन करते हैं। All the food that they brought from Egypt until now sustained them, but it got exhausted. So at the wilderness of sin, they are complaining because they don't have food on hand. मेरे प्यारो, जो मिस्र देश से उन्होंने भोजन लाया था, वो भोजन अभी खत्म हो चुका है। अभी सिन नामक जगह में आने के बाद जो है वे लोग भोजन के लिए जो है कंप्लेन कर रहे हैं। What does it teach us, brothers and sisters? The wilderness of sin experience in the life of children of Israel. They're complaining of food. What do we understand from that as believers? मेरे प्यारो, जो है एक विश्वासी होने के नाते ये जो मरुभूमि का जो सिन नामक मरुभूमि का अनुभव इस्राएल के जीवन में आपको और मुझे क्या शिक्षा देता है मेरे प्यारो? It teaches us that we must have trust and faith in God's divine providence always. मेरे प्यारो, ये हमें ये शिक्षा देती है कि हर बार जो है परमेश्वर के उस जो है परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमारे सब कुछ बंदोबस्त करता है, व्यवस्था करके देता है। हमारे जो रोज का भोजन के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। It might happen in our lives that there will be situations when we have nothing to provide for us to move forward. It might be situations will come like that, or it must have come like that. But during those times, the experience of the children of Israel in the wilderness of sin is not to complain, not to think of Egypt, but to put faith and confidence in God's divine providence. मेरे प्यारो, विश्वासी का जीवन में क्या होता है ना, एक बात ध्यान रखना कि जो है हम हमारे पास जो है कुछ भी नहीं होता, भोजन के लिए नहीं या कुछ आगे के लिए कुछ भी नहीं होता है। ऐसे वक्त में जो है परमेश्वर का विरुद्ध कंप्लेन करने के बजाय जो है उस मिस्र देश को स्मरण करने के बजाय, भोजन के लिए आरोप लगाने के बजाय, परमेश्वर के उस स्वर्गीय जो व्यवस्था के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। Because we know that God provided them manna till the last day of the wilderness journey. मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था ना, उसका जो इजराइल लोगों का आखिरी मरु यात्रा तक परमेश्वर ने उस मन्ना को परमेश्वर ने दिया था। This is how God provides for his chosen children. और इस तरीके से जो है परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था करके देता है। The meaning of manna is, what is it? They were inquisitive. They wanted to know what this heavenly food is. What is the food of the angels? Manna means, what is it? मेरे प्यारो, जो है वे लोग हर समय तैयार और तत्पर थे जो है इस मन्ना क्या है इसको जानने के लिए। मन्ना का अर्थ होता है ये क्या है। Now, here the children of Israel, when they cry, the verse that we read just now, when they cry, they are using the name of Jehovah. मेरे प्यारो, आप देखिए जो है अभी हम जिस वचन को पढ़े थे, उस वचन के जरिए यदि हम लोग देखेंगे, जब वे लोग रोते हैं, बस चिल्लाते हैं, कंप्लेन करते हैं, उस वक्त जो है यहोवा का नाम को लेकर के वे लोग रोते हैं। In other words, they were trying to be religious. They were trying to be like believers. They were showing probably to the world that they believe, but in heart of hearts, they had no faith that God will provide for them.
ओ मेरे प्यारो, इस बात को हमें यदि देखें तो हमें ये समझ में आता है, वे लोग विश्वासी होने के लिए नाटक कर रहे हैं, विश्वासी हम हैं करके दिखावा, छल कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल को जो है गहराई से यदि झांक करके देखें तो जो है वे लोग विश्वासी नहीं है। It is a fact that they did not have food. We cannot deny that. But that fact should not be turned into losing faith and hope in the God who brought them from Egypt, made them cross the Red Sea, gave them the experience of Elim, and now they're complaining about that. That should never happen. मेरे प्यारो, जो है हम समझ सकते हैं उनको भोजन का आवश्यकता है, भोजन उनके पास नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो है वे लोग मिस्र देश से कैसे छुड़ा करके जो है परमेश्वर उनको ले आया है, लाल समुद्र को परमेश्वर ने कैसे पार किया है, और फिर जो है एलिम नामक जगह से उनको जो है कैसा तृप्त किया है, इस बात को कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए था। They were just going through that experience that God is going to prove to them that He can take care of all their needs. That is what He was trying to prove at the wilderness of sin. मेरे प्यारो, जो है सीन नामक जो मरुभूमि में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, इस बात को प्रमाण जो है परमेश्वर कर रहा था कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी संदर्भ क्यों ना हो, वो उनको जो है भोजन और हर चीज का व्यवस्था करके दे सकता है। All right, I'm stopping here. We then move on to the next station. Next location is Dovka. God willing, next week we will do that. But I trust what we learned from these three stations